Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh. Today we are going to study electricity, class 10th. In this chapter we are going to study about charge, current, potential difference, resistance, everything. Okay, so let's start. Firstly, what is friction? Due to friction, what happens? When we rub two things, then electrons from one body travel to other one and दोनों bodies पे charge आता है. कैसा charge आता है? So let's study. When we rub a glass rod with silk, okay, when a glass rod is rubbed with silk, electrons move from glass rod to silk. This is important over here. Electrons move from, who moves? Electrons. Electrons travel करते हैं glass rod से silk में. तो silk acquires negative charge and positive charge goes on glass rod. Okay. Now, क्यों हो रहा है ये? कैसे होता है? Whenever we rub two things, then दोनों चीज़ों में जिसका कैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंगली एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. तो लेट्स से these are two bodies. When we rub them, electrons move from body A to body B. बॉडी ए पे कैसा चार्ज आएगा? उसके बाद पॉजिटिव चार्ज. बॉडी बी पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स देमसेल्व्स हैव नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स पे खुद पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल करते हैं ए बॉडी से तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है और बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स जब आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है. ओके, दैट्स व्हाई बी बॉडी नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करती है एंड ए बॉडी सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करती है. ओके, दिस हैज बीन एक्सप्लेन ओवर हियर. ग्लास रॉड, silk cloth, when we rub them, then glass rod acquires positive charge and silk acquires negative charge. Okay, so due to this concept of friction, the concept of charges came to notice. Due to this concept of friction, charges का concept आया. Okay, so we will study further how charge are being connected, okay, to what? Electrons. समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज आपस में कैसे कनेक्ट हुए? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से ही हम बोल सकते हैं किसी बॉडी को उसके ऊपर चार्ज आया है या उसमें से चार्ज कम हुआ है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. When we will come to electric charge, positive charge and negative charge. There are two types of charges. Glass rod पे जो positive charge आया और silk पे जो negative charge आया. Okay, there are two types of charges. So different experiments proved that the same charges repel each other and opposite charges attract each other. अब यहाँ opposite charges का मतलब क्या है? Let's see. If there are two positive charges, they are going to repel each other, and if there are one positive and one negative charge, उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स. यहाँ फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स. What is repulsion? What is attraction? Suppose two boys are standing in front of each other. One boy is, so like both are not attracted towards each other, they will try to repel. One boy and one girl, they might attract. Okay, so in the same way the two positive charges repel each other, two negative charges, अगर दो negative charge होंगे they will also repel each other. Negative repel, positive repel, and one positive, one negative, they attract each other. This is the hierarchy of them. Okay, उनका नेचर ऐसा होता है. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज अगर दो होंगे रिपल्स करेंगे,
नेगेटिव चार्ज भी दो होंगे अगर, तो वो रिपल्स करेंगे. वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट. ओके, नाउ let's see the mathematics how the charge came from electrons. The electric charge is equal to number of electrons. What it's saying, आज तक हम बोलते आए चार्ज क्या है, तो मैथमेटिकली चार्ज को हम क्वांटाइज कैसे करें, कैसे डिफाइन करें. सो व्हेनेवर वी से बॉडी ए से बॉडी बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, बॉडी ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहां से यहां फ्लो क्या हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? देन ओनली बॉडी बी गॉट नेगेटिव चार्ज एंड बॉडी ए गॉट पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तब कितना चार्ज आएगा, वी कैन आस्क, राइट. ये क्वेरी हमें जनरेट हो सकती है कि कितने चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तब कितना चार्ज एक्वायर होगा. So, to define that, we have one formula, Q equals to NE. What is Q? Let's see. Q is total charge. Body A या body B के ऊपर जो total charge आने वाला है वो है total charge Q. E is what? Charge of इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो वी हैव स्टडीड 1.6 इंटू 10 to power minus 19 कूलम. व्हाट इज कूलम? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. वी रिप्रेजेंटेड बाय सी. चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम. ओके, एंड व्हाट इज एन? एन इज number of electrons. So we see this formula again, Q equals to Nu. This is known as quantization of charge. Electrons मिलके क्या बना रहे हैं, चार्ज बना रहे हैं. Q is total charge, N is number of electrons which are going to be transferred from body A to body B, and E is charge on इलेक्ट्रॉन. ईच इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है हर इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10 to power minus 19 कूलम. सो दिस इज चार्ज ऑन ई. Q equals to Ne. Okay, now let's see this question. Calculate number of electrons in 1 coulomb of charge. चार्ज के एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी बी, बॉडी 1 टू बॉडी 2 और बॉडी ए टू बॉडी बी. किसी भी दो बॉडीज में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगर हमें एक कूलम ऑफ चार्ज अगर ट्रांसफर करना है. सो वी यूज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू Ne. Q is given as 1 coulomb. Q is 1 coulomb. N we have to find, and here it is written incorrect. It is 10 to power. It is in the power. All right. यहाँ ये चीज़ एक्सपोनेंट में है -19. तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 to power minus 19. एक कूलम हमारी फाइनल यूनिट है, तो 1.6 इंटू 10 to power minus 19 से जब डिवाइड किया 1 को, तो वी गॉट आंसर एज 0.625 इंटू 10 to power plus 18. Or you can say, firstly we will say, okay, wait. N कैसे निकाला हमने, लेट्स सी. 1 divided by 1.6 into 10 to power minus 19. Answer came as 0.625 into 10 to power minus 19. When goes to numerator it becomes plus 19. और इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 6.25
into 10 to power plus 18. Okay, 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2 टू गेन 1 कूलम ऑफ चार्ज. एक बॉडी पे 1 कूलम नेगेटिव आएगा, एक बॉडी पे 1 कूलम पॉजिटिव आएगा. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन चार्ज. नाउ व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट इज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से चार्ज बना. ओके, और चार्ज के फ्लो होने से कौन बनेगा? करंट. सो व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सिंपली मतलब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें? कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो होता है. तो चार्ज अपॉन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आई इज Q upon T. चार्ज अपॉन टाइम इज नोन एज करंट. ओके, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम. टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड्स. तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. I इक्वल्स टू Q बाय T. इसका यूनिट है कूलम, इसका यूनिट है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर. व्हाट इज एम्पियर? Ampere is the unit of current. Okay, and if we say what is 1 ampere? 1 ampere क्या होगा? When 1 coulomb of charge is flowing for 1 second, then we say the amount of current is 1 ampere. So 1 ampere is when 1 coulomb of charge flowing for 1 second. Okay, 1 ampere equals to 1 coulomb per 1 second. Okay, so now here it is given ammeter. Ammeter क्या होता है? The device which measures current is known as ammeter. Okay, so ammeter is an instrument used to measure what? Current. Okay, ammeter helps us to measure the current, the amount of current flowing. Okay, and whenever we connect ammeter in the circuit, okay, it is connected in series. What is series? We have been through this name only. Series क्या होता है? पैरेलल क्या होता है? मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको. अभी क्या जानना है आपको? Series means just parallel to me. Okay, parallel is the wrong word over here. Series means just मेरे adjacent, and parallel means just इन कंपैरिजन टू मी, मेरे जैसा ही एक और कोई खड़ा है सामने, दैट इज पैरेलल. ओके, आगे देखेंगे. तो एमीटर को ऑलवेज कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में. क्यों? इसकी लो रेजिस्टेंस होती है एंड इन सीरीज द करंट रिमेन्स कांस्टेंट. ये चीज़ जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब मैं और क्लियर करूंगा आपको. ओके, चार्ज में हम और क्या देखेंगे? whenever we see इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, करंट ऑलवेज उसके ऑपोजिट फ्लो होता दिखेगा या माना जाएगा. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, करंट अगर हम बोलेंगे तो बी टू ए फ्लो हो रहा है. ओके, देयर आर 2 टर्मिनल्स. ओके, तो 2 टर्मिनल्स में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से तो करंट, जस्ट अ सेकेंड, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है. और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम negative terminal to positive terminal and current flows from positive terminal to negative terminal. Okay, now conductors. What do we mean by conductors? Conductors का मतलब क्या है? Let's understand. Conductors क्या है? हमने यहाँ पे क्या किया? सब्सटेंसेस के टाइप्स देखे. कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स
free mobile electrons. Mobile means movable. Okay, conductors क्या है, जिनके अंदर free electrons मौजूद होते हैं, free electrons travel करते हैं, because of that current easily travel करता है from one point to another. Okay, ऐसे substances को हम क्या कहते हैं, conductors. So you can see in conductors flow of electrons, flow of what, electrons in a circuit flow from positive terminal of the battery to the negative terminal. Okay, due to flow of electrons we constitute current. और conductors में कैसे current flow होता है, due to electrons. Okay, and one thing, you can see the word higher potential over here. जैसे अगर मैं कहूँ these are two terminals of a cell and if current is flowing from positive to negative, then this positive terminal is called as at higher potential than negative one. समझ में आया? अब ये potential क्या है? What is potential? We'll see in further slides. What is potential? Potential क्या होता है? Okay? So leave this to me. ये potential की बात क्या है? What is potential? We'll come in further slides. Okay? Now, for example, copper, aluminium, okay, these conduct what? Electricity, but the plastic insulation is an insulator. Copper, aluminium, these are all conductors, they conduct electricity, but the other ones like plastic, okay, they are called as insulators. So what is conductor? Which conduct electricity. What is insulator? Which doesn't conduct electricity, जो electrons को flow नहीं होने देता. Okay, insulators example क्या है? Glass, plastic, they do not have free mobile electrons. Okay, now what is potential? What is current? Rate of flow of charge is current. अब potential क्या है? Let's see. It is the work done in moving positive charge from infinity to a certain point in electric field. क्या क्या बोल गया? यहाँ देखें. Suppose यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है, इसके आसपास जो एक फील्ड है जहाँ तक ये अपने दायरे को फील करवा सकता है, अपने प्रेजेंस को फील करवा सकता है, ये बोला जाता है इसका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी छोटे चार्ज को मैं लेके आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क. सपोज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. अब अगर मैं पॉजिटिव के एरिया में ही अगर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर लेके आऊं तो आई हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क. तो पोटेंशियल क्या होगा मेरा? इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, सपोज इट इज पॉइंट ए. तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज अपॉन दैट चार्ज. ओके, सो बाहर से अगर किसी चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊं तो मेरा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पे अगर मैं लेके जाता हूं उसी चार्ज को, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी बी माइनस वी ए equals to work done to bring the charge from or to take the charge from A to B upon that charge. Okay, this is potential and potential difference, जिसको हम डिनोट करते हैं कैसे? डेल्टा V terms. What is delta V? The difference between two things. Okay, VB minus VA or V is
what is potential? Work done upon charge. Work done in moving the positive charge from infinity to a certain point in electric field. Electric field क्या हुआ? किसी भी चार्ज के आसपास का दायरा जहाँ तक वो अपनी प्रेजेंस को शो कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, वर्क अपॉन चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है? पोटेंशियल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, a unit positive charge is at a point at infinity and we try to bring it to a point B. We have named the point as A. Electric field of some other charge, capital Q. यहाँ Q2 बोला है उसको. Then so that we need work to bring it, तो work upon charge के रेशियो को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. जो वर्क हमें करना पड़ा किसी पॉजिटिव चार्ज को दूर से लेके आने के लिए, दैट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ऑलराइट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट्स वन एंड सेम थिंग. पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल तो क्या है? एक पॉइंट पे लाना. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हेन वी ब्रिंग इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए टू बी, तो वी बी माइनस वी ए इज पोटेंशियल डिफरेंस. यूनिट क्या होता है इसका? पोटेंशियल का वर्क का यूनिट क्या है? जूल. और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. सो जूल पर कूलम इज वोल्ट. जूल पर कूलम इज वोल्ट और वोल्टेज. तो 1 वोल्ट अगर बोलूं मैं, तो इट वुड बी 1 जूल पर 1 कूलम. ओके, एंड how do we measure potential? We measure potential with the help of voltmeter. किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? Is it mentioned? No. वोल्टमीटर की हेल्प से. किसकी हेल्प से? वोल्टमीटर. जैसे एमीटर की हेल्प से करंट मेजर करते हैं, वैसे वोल्टमीटर की हेल्प से पोटेंशियल मेजर करते हैं. ओके, एंड वी हैव टू कनेक्ट दैट इन पैरेलल. व्हाई? आई विल एक्सप्लेन. ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इट्स ऑलरेडी बीइंग एक्सप्लेन. ओके, इट इज रिटन हियर. वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं हम वोल्ट को, पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से. यूनिट है वोल्ट. एंड हाउ टू कनेक्ट दैट? इन पैरेलल, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस का यहाँ क्या मतलब है? विल कम. ओके, नॉट टू वरी. ऑलराइट, दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक फॉर टुडे. ऑलराइट, विल सी फर्दर. थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.